بورس جانسن کے بعد برطانیہ نئی قیادت کے ساتھ اپنا سیاسی سفر شروع کرنے کو تیار ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کی نئی قائد لیز ٹرس کل باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے غلام حسین عوان سے۔ جی غلام حسین عوان، بتائیے گا۔ ٹوری پارٹی کی جو لیڈرشپ کی ریس تھی اس کو انہوں نے جیت لیا ہے۔ رشی سونک کو انہوں نے شکست دی ہے۔ تقریباً 81,000 سے زائد انہوں نے جو ہے وہ ٹوری پارٹی کے جو ممبران ہیں ان کے ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ رشی سونک جو ہے وہ 60,000 کے قریب جو ہے وہ ووٹ حاصل کر پائے ہیں۔ یہ تقریباً گزشتہ 2 ماہ سے جو ہے وہ ٹوری پارٹی کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ ریس جاری تھی۔ 11 امیدوار شروع میں آئے، اس کے بعد جو ہے وہ کم ہوتے، پھر آخر میں 2 امیدواروں کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہوا، جن میں رشی سونک اور لیز ٹرس تھی۔ لیز ٹرس نے جو ہے وہ آج یہ مارکا جو ہے وہ جیت لیا ہے، اور کل وہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر برطانیہ کی وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گی۔ کل جو ہے وہ ان کی ملکہ برطانیہ سے اسکاٹ لینڈ کے اندر جو ہے وہ ملاقات ہوگی، جس کے بعد ملکہ برطانیہ انہیں یہ دعوت دیں گی کہ وہ جو ہے وہ حکومت بنائیں۔ جس کے بعد جو ہے وہ لیز ٹرس جو ہے وہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی نئی مہمان بنیں گی، اور کل ہی جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ میں اراکین سے خطاب کریں گی، اور اپنے تمام جو ٹوری پارٹی کے ممبران ہیں اور جتنے بھی ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو اعتماد میں لیں گی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ہے وہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن جو ہے وہ کل اپنی الوداعی ملاقات کریں گے اپنے کیبنٹ منسٹر کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے وہ کل جو ہے وہ ڈاؤننگ اسٹریٹ کو جو ہے وہ خیر بات کہیں گے، اور وہ ملکہ برطانیہ سے جو ہے وہ اپنی ایک آخری ملاقات کریں گے، اور توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ برطانیہ کے معاشی مسائل جو ہے وہ ضرور حل کریں گی۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں معروف کاروباری اور سماجی شخصیت میاں نعیم جاوید نے سہارا فار لائف کے چیئرمین ابرار الحق کے اعزاز میں شائیہ دیا، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان کے علاوہ بڑی تعداد میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا حوالہ راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ سہارا فار لائف کے چیئرمین اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما معروف گلوکار ابرار الحق کی مانچسٹر آمد، کمیونٹی کی جانب سے پذیرائی کا سلسلہ جاری۔ معروف کاروباری اور سماجی شخصیت میاں نعیم جاوید نے ابرار الحق کے اعزاز میں پروقار تقریب کا اہتمام کیا، جس میں ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان، ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ واجد خان، معروف کاروباری شخصیت انیل مسرت، طلحہ جاوید، ہارون افضل کھٹیانہ، ڈاکٹر سلمان شاہد، چودھری مسرت علی، زاہد اقبال کے علاوہ بڑی تعداد میں کاروباری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز ڈاکٹر یونس پرواز نے تلاوت کلام پاک اور ابرار الحق نے نعت رسول مقبول سے کیا۔ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر آف پارلیمنٹ محمد افضل خان، انیل مسرت، لارڈ واجد خان اور دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے جو تباہ کاری ہوئی ہے اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد اور ان کی بحالی کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر ہر ممکن ان کی امداد کرنی چاہیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سہارا فار لائف ٹرسٹ ابرار الحق نے سہارا ٹرسٹ کی بنیاد رکھنے سے لے کر اس کی اب تک کی کارکردگی کی تفصیلات سے شرکاء کو آگاہ کیا اور اس کے پلیٹ فارم سے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اپیل بھی کی۔ ہمیں آج یہاں پہ اس وقت چھوٹی سی محفل سے 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے وہ ڈونیٹ ہوا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں کہوں گا یہ فنڈ ریزنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم اگلی فنڈ ریزنگ تک جو ہے آپ کی آمدن میں اور پروفٹ میں اضافے کی دعا بھی کریں گے، اور آپ سے توقع بھی رکھیں گے کہ جو اگلی ہماری 23 سپٹمبر کو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ
ज़रूर आएँ और बढ़ चढ़ के इस मौके पर तकरीब में मौजूद मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए। 1 लाख पाउंड से ज्यादा रकम के अतियात जमा हो गए। मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट इब्रारुल हक का कहना था कि पाकिस्तानी बड़ी बहादुर कौम है और जो भी आफत आए इसका डटकर मुकाबला करते हैं। इस नाजुक सूरत हाल में उन्हें हिलाल अहमर के चेयरमैन से अचानक हटाना एक साजिश और इंतकामी कार्रवाई है। बड़ी आफतें आई हैं हम पर और बड़ी दिलेर कौम है, लेकिन ये वाली आफत जो है ना, ये यकीनन पुरानी सब आफतों से बड़ी है मैग्नीट्यूड में, और उनका रोज़गार ले गई है, उनके जानवर बहा के ले गई है, उनकी दुकानें तोड़ गई है, उनके मकान तोड़ गई है, 1000 से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा बंदे चले गए हैं। सो इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड। फ्लड्स के लिए शायद हमें कोई नया नाम रखना पड़ेगा इसका, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये घबरा नहीं रहे। अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम रिकवर करेंगे। हम सारे पाकिस्तानीज़ मिल के इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज़ भी, हमारे डोनर्स भी, हमारे दोस्त इसराज एक्सपर्ट्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए MPA मोहम्मद अफजल लॉर्ड वाजिद खान और दीगर का कहना था कि छोटी सी तकरीब में शुरका ने जिस फरागदिली से सैलाब ज़दगान की मदद की वो काबिल तहसीन है। ये बड़ा कामयाब फंक्शन रहा और लोगों ने दिल खोल के पैसे दिए हम पाकिस्तानी गरीब आवाम के लिए। मैं सभी का शुक्रिया। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वहाँ बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ है, माली भी हुआ है, जो कि हम सालों लगेंगे हमें रिकवर करने के लिए। तो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को चाहिए कि हम इस तरह के कार्य खैर पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज यहाँ इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिसमें बहुत से जनरस तौर पे लोगों ने डोनेट भी किया है। छोटे से प्रोग्राम में और नीली 110,000 डोनेट किया गया है। तो यही अपील है तमाम बहन भाइयों से कि वो आगे बढ़ें और दिल खोल के अपने बहन भाइयों को मदद करें। यहाँ मकसद था फंड रेजिंग करना। जो पाकिस्तान में इतनी बड़ी आफत आई है, डेविस्टेशन आई है, उसमें यहाँ माशाल्लाह जो हमने ओवर 100,000 पाउंड इकट्ठा कर लिया, ये तो बिगिनिंग है। तो मुझे उम्मीद है और यकीन है कि मैनचेस्टर के लोग दिल खोल के देंगे। इब्रारुल हक साहब की माशाल्लाह ज़बरदस्त स्पीच थी, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट। सैलाब पाकिस्तान सैलाब में सैलाब आया, जैसे आप सब लोग जानते हैं 33 मिलियन अंडर वाटर। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमारे एहसास ख्यालात जज्बात उन पाकिस्तान के मज़लूम लोगों के साथ है। मैं चाहूँगा जो भी आप रिसर्च करके चैरिटी को चुनना चाहेंगे चुनें, ज़रूर सपोर्ट करें। मैनचेस्टर में UK की जो हमेशा डायस्पोरा हमेशा पाकिस्तान के लिए जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं हमेशा तावन करते हैं। जो फंड रेजिंग का जो इवेंट था वो माशाल्लाह वो तकरीबन 1 लाख पाउंड के करीब जो है वो आज के इवेंट से वो कलेक्ट हुआ। इनफैक्ट अभी ये ऑन गोइंग है और चल रहा है। तो ये जो है वो नंबर्स हमारे सामने है। इसमें मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, लेकिन ये टाइम है जिस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है हम सब लोगों की, जो पर्टिकुलरली ओवरसीज़ पाकिस्तान की। तकरीब के आखिर में इब्रारुल हक ने सैलाब मुतासरीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अपना लिखा हुआ नगमा भी पेश किया। बर्मिंघम जिप्सन क्रिकेट ग्राउंड के कम्युनिटी हॉल में ब्रिटिश पाकिस्तानी इनिशिएटिव के ज़ेर तमाम पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें बरतानिया भर से बिजनेस कम्युनिटी के अलावा MP लॉर्ड, डिप्टी लॉर्ड मेयर, काउंसलर्स और दीगर शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौसम अहमद खान बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। गुलकार इब्रारुल हक ने लाइव परफॉर्मेंस के ज़रिए शुरका को खूब महसूस किया। तफसीलात जानेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। ब्रिटिश पाकिस्तानी इनिशिएटिव पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड को फरोग देने के साथ पाकिस्तान और बरतानिया कल्चर को जोड़ने और हमआंगी पैदा करने के लिए कोशा रहती है। पाकिस्तान के जश्न आजादी की मुनासबत से पुरतकल्लुफ डिनर भी इसी सिलसिले की कड़ी था, जिसमें बरतानवी ऑफिशियल्स और ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को फैमिली समेत मदऊ किया जाता है। इस दौरान पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत से ब्रिटिश और दीगर कम्युनिटीज को भी मुतारिफ करवाया जाता है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की 75वीं यौम आजादी की रंगारंग तकरीब और सालाना डिनर BPI के ज़ेरे एहतमाम जिप्सन क्रिकेट
मार्केट ग्राउंड के कम्युनिटी हॉल में मुनक्कद हुआ, जिसमें हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान मौज़म अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम मॉरन गॉर्निश, MP साकिब भट्टी, सईदा वारसी, सज्जाद करीम, लॉर्ड वाजिद और दीगर हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात खवातीन और हजरात ने भी भरपूर शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ चैरिटीज ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए फंड रेजिंग के स्टॉल्स लगा रखे थे ताकि पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन की बर वक्त इमदाद की जा सके। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर रफाकत साबिर, नासिर अवान, डेप्यूटी लॉर्ड मेयर काउंसलर शफीक शाह, सईदा वारसी, लॉर्ड वाजिद, MP साकिब भट्टी, हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान, लॉर्ड मेयर्स और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं इजहार ख्याल किया। बहुत सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी जो इस वक्त काम कर रही हैं, तो असल मकसद ये है कि किस तरीके से हम अपने जो इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारे बहन भाई हैं जो फ्लड से इस वक्त अफेक्टेड हैं, उनकी किस तरह मदद की जाए। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है और इसी के लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे। Tonight we're here again with lots and lots of wonderful people and talking about Pakistan and the 75th anniversary, but also our thoughts are going to the disaster in Pakistan right now. All the thoughts of Birmingham are very much there supporting. पाकिस्तान की 75th इंडिपेंडेंस डे की एनिवर्सरी है, तो इस इवेंट का जो मेन मकसद है, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि ना सिर्फ बर्मिंघम बल्कि इंग्लैंड की तमाम शहरों से जो प्रोमिनेंट कम्युनिटी के लोग बुलाए गए, जिसमें मज़ीद जो है ज़्यादातर नॉन पाकिस्तानी हैं। तो इसका मेन मकसद यही है कि जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है उसको प्रमोट किया जाए। लोगों ने बहुत इंजॉय किया है, लेकिन ओवरऑल रिफ्लेक्ट भी किया है कि जो को हो रहा है पाकिस्तान में फ्लड्स के हवाले से मजलूम लोग वो जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, हमें चाहिए सबको सपोर्ट करें पाकिस्तान के हवाले से। ब्रिटिश पाकिस्तान से हमेशा बढ़ चढ़ के जोश अफरोज से ऐसे चैरिटेबल कॉजेस को सपोर्ट करते हैं। नेशनल डिजास्टर है। Brilliant turnout, and I don't think it could have been at a better time than this, because our thoughts, our prayers and our considerations are all entirely with the victims of those people in Pakistan suffering at the moment across Pakistan, but more particularly those in the Sindh province and also in the Khyber Pakhtunkhwa side, Swat and so on. Our thoughts and prayers are with those, and we hope that gatherings such as these will be able to inshallah raise awareness. जैसे हालात वहाँ पे बदले, तो ये सेलिब्रेशन की जगह से हमने इसको एज अ फंड रेजिंग इवेंट किया, और किसी को हमने इम्पोज नहीं किया कि तुम पैसे दे, लेकिन हमारा पहला जो मेहमान है उसने 10,000 पाउंड ऑलरेडी दे चुके थे। उससे अलावा इंशाल्लाह और भी अभी इकट्ठा करेंगे। बहुत अच्छा लगा सब लोगों को मिलने और नेटवर्क करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर रहते हुए हम लोगों की मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा हो जाती है, और इस दिन को हम लोग बहुत जोश व खरोश से मनाते हैं। All the Birmingham communities come out today to celebrate this wonderful occasion. We should be very, very proud of our country, Pakistan, and 75 years is a great milestone, and we British Pakistanis, in the context of what's happening in Pakistan at the moment, it's really important that we remember the devastation that's happened and the devastating impact of the floods over there, and we remember those that need our support. It is a celebration because it is 75 years since Pakistan was created, but it is also tinged with sadness because of the recent floods in Pakistan. So whilst we celebrate, our thoughts and prayers are with our brothers and sisters in Pakistan who are facing difficult circumstances. یہ تو پروگرام ہم ہر سال کرتے ہیں کہ 14 اگست ہم مناتے ہیں، لیکن اس ایئر یہ اسپیشل اس لیے ہے، دو مقصد ہیں، ایک تو 75 ایئرز ہے، اور دوسرا جو سب سے ضروری ہے پاکستان کا آج کا جو سچویشن ہے فلڈز کے ساتھ، تو ہم نے کہا کہ کمیونٹی آ رہی ہے، بزنس کمیونٹی اکٹھی ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اس کو لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، باہر جو انگریز لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں۔ پاکستان 75 ایئرز جو انڈیپینڈنس ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی دوران ہم جو ہے اپنا ایک تھرپارکر کی جو ہمارا سٹول جو ہم نے میلے کے دوران بھی لگایا تھا، آج یہاں بھی لگایا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آج بھی ہم جو سامان بیچیں گے جو پاکستان سے آئے، یہ سارا فلڈ اپیل کی طرف جائے گا، جہاں پہ پاکستان کی خوشیوں کو اور پاکستان کے سکسیس کو ہم یعنی کہ سب مل جل کر جانا اس کی خوشی منا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں افسوس اور صدمہ بھی ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے اندر فلڈ وغیرہ آئی ہیں ان کے لیے جتنے بھی ہو سکے گے جنا دعا بھی کریں گے، اور ان کے لیے جنا
चैरिटी वगैरह जो भी जना काम हम कर सकते हैं एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे. To be invited to attend the Pakistani Independence 75th event anniversary, and I'm looking forward to the dinner and networking and meeting other members of my community. प्रोग्राम में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का पैगाम भी सुनाया गया. There are possibly third and fourth generations already working and identifying themselves with Pakistan and having a love with the Pakistani people. I must thank them for taking this initiative. गुलूकार इब्रारुल हक ने लाइव परफॉर्मेंस में शुरका को खूब महसूस किया. इब्रारुल हक के खूबसूरत गीतों ने तकरीब की रौनक दुबाला कर दी. शैतान तारी करना पड़ता है, इस लोगों को तो जरूरत ही नहीं होती. इसको इस तरह करें, एक साइड से स्माइल लेनी है और कंधों को जरा सा यूं करना है. इस मौके पर इब्रारुल हक ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाही देते हुए तमाम ब्रिटिश पाकिस्तानी से अपील की कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सैलाब ज़दगान की लाजमी सपोर्ट करें. In global warming, but unfortunately is badly hit, and it's among the first 5 countries who are most disaster-prone countries of the world. शुरका का कहना था कि जश्न आज़ादी के इस किस्म के प्रोग्राम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मस्बत चेहरे को उजागर करने में मुआविन साबित होते हैं. आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम. इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाला तीसरा आज़ादी कप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने जीत लिया. फाइनल मैच में पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर की टीम ने खूब मुकाबला किया. आज़ादी कप से होने वाली आमदनी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को भेजी जाएगी. MP एल्फ्रेड साउथ सैम टेरी, मीर लोशिम, तौसीफ अनवर, पाकिस्तान हाई कमीशन से ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद शफीक, मुश्ताक लाशारी और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए. तफसीलात मशरक़ी लंदन से सलीम साबरी की रिपोर्ट में. इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाला तीसरा आज़ादी कप अपने इख्तिताम को पहुंचा. फाइनल मैच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम की. टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए 30,000 पाउंड से जायद फंड रेजिंग की गई. जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट में 14 टीमों ने हिस्सा लिया. तमाम टीमों ने शानदार खेल पेश करके खूब दाद समेटी. फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एल्फ्रेड साउथ, मेयर लोशियम, तौसीफ अनवर, पाकिस्तान हाई कमीशन से ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद शफीक, OBE मुश्ताक लाशारी, पाकिस्तान कम्युनिटी सेंटर से खालिद डार और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए. चेयरमैन IBPC चौधरी रिजवान सलहरिया, चेयरमैन अली डेविस, सलीम यासीन, आसम यूसुफ, टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर आमिर खान, हाफिज तौसीफ और दीगर का कहना था कि आज़ादी कप के मुनक्कद कराने का सबसे बड़ा मकसद पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करना है. मुश्किल की इस घड़ी में तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो दिल खोल कर अपने भाइयों की मदद करें. ये जीत क्रिकेट की नहीं है, ये सैलाब ज़दगान की जीत है. सारी टीमों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है. जैसे हमने ये तीसरा आज़ादी का मिलिए डेविस के ताउन से हमने ये किया था, जिसमें हार्ड बॉल के भी थे टीमें और टेनिस बॉल की भी टीमें थी, और जिसकी जितनी भी आमदन है वो हम सैलाब ज़दगान को दे रहे हैं. बहुत बड़ी तादाद में टीमें भी आई हैं, प्लेयर्स भी हैं, उनके साथ उनके तमाशाई भी हैं. फंड रेजिंग के लिए इंशाल्लाह ताला वो भी कोशिशें हो रही हैं. पाकिस्तान के लिए मैक्सिमम फंड्स इकट्ठे करेंगे, पाकिस्तान को भिजवाएंगे. कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने आज यहाँ पे शिरकत की है हमारे तीसरे IBPC आज़ादी कप क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर. इसका मेन मकसद यही है कि जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको यहाँ पे इकट्ठा करके जो पाकिस्तान में एक सैलाब आया हुआ, एक मुसीबत आई है, उसके लिए फंड रेजिंग की जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को हमारी बहुत सख्त जरूरत है. बट वी स्टैंड विद द पाकिस्तानी कम्युनिटी. पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और उसकी बड़ी तबाहकारियां हैं. आज का जो मैच, जो आज का टूर्नामेंट है, ये हमने डेडिकेट किया है फ्लड रिलीफ के लिए जो पाकिस्तान में है. ओवरऑल टूर्नामेंट बहुत अच्छा हुआ है और लेडीज और बच्चे भी यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, और इट्स फैंटास्टिक. ये बहुत हेल्थी चीज़ है, और ख़ासकर पाकिस्तान रिलीफ फंड के लिए जो चंदा जमा हो रहा है वो इंशाल्लाह हम 30-40,000 पे पहुंच रहे हैं. आज़ादी कप का मेन मकसद होता था कम्युनिटी को इकट्ठा करना, मगर इस दफ़ा IBPC और सलीम साहब ने ये फैसला किया है कि हम जो पाकिस्तान में बदतरीन जो फ्लड आया है उसके जो मुतासरीन है उनकी मदद के लिए आगे आया जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग दिल खोल कर अतियात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सारी मदद हम पाकिस्तानी अपने भाइयों के लिए करेंगे. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अल्फ्रेड साउथ, सैम टेरी ने कहा
कि हमारी कोशिश है कि रकम 40 से 50,000 पाउंड तक हो जाए। बहुत जल्द हम एक टीम लेकर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान जाएंगे। You know, when I saw the terrible and horrific pictures from Pakistan, many of my constituents in Ilford started contacting me, asking me about what we can do to help. I said, look, we must do something. So we pulled this tournament together at short notice and raised that money at short notice. But this is just the beginning. We're going to be able to raise more money. And actually, as I've said, I'm planning, and I've already released one of my team to go to Pakistan, who's going to be working with some of the aid organisations there, sending reports, pictures back here to the UK, back to our Pakistani community. टूर्नामेंट के आखिर में MP अल्फ्रेड साउथ, सेम टेरी, मीर लोशियम तौसीफ अनवर, पाकिस्तान हाई कमीशन से ट्रेड मिनिस्टर मोहम्मद शफीक, मुश्ताक लाशारी और दीगर ने खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट शार्लेट निकोल ने कहा है कि दुनिया को पाकिस्तान में सैलाब की तबाही को संजीदगी से लेना चाहिए और पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कर्ज माफ़ करने समेत हर ऑप्शन पर गौर करना चाहिए जिससे पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद की जा सके। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत कर रही थी, आपको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट शार्लेट निकोल्स मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि जो क्लोडिया वेबी हैं, उन्होंने गुज़श्ता दिनों एक स्टेटमेंट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनको पाकिस्तान के तमाम डेट जो है वो वेव ऑफ करने चाहिए। इनसे पूछते हैं कि आप डू यू एग्री विद द क्लोडिया वेबी स्टेटमेंट इन व्हिच शी सेड the Western world should waive off the Pakistan's debts due to the flood? I haven't seen Claudia's statement specifically, but I think at this point all options should be on the table with regards to getting the help that's desperately needed for the humanitarian effort in Pakistan. I think it's very difficult for us to comprehend the scale of what's happened there, how many people are displaced, how many people have died, and how long it's going to take for Pakistan to be rebuilt and for them to recover from what's happened. And so I think we need to be looking not just at how we can be raising more charitable funds, but what we can be doing in terms of things like trade and investment with Pakistan, and what we can be doing with regards to debt relief to make sure that Pakistan has that support in the long term in a sustainable way as they rebuild from this horrible tragedy. But do you think the Western countries, they need to do more for the climate change because the developing countries, they are suffering a lot? Absolutely. As far as I understand it, Pakistan only contributes about 1% to global emissions, but as we've seen from what's happened there, they're suffering really badly because of it. I think that countries around the world who are, some of the biggest fossil fuel polluting countries, some of the huge corporations that are contributing the most emissions, really have to look at what's happening in Pakistan for the human cost of some of those things that they've been doing, policies which they've been putting forward, and doing what they can to help remedy it, because we know that climate change is getting worse. We've had 40 degrees in the UK this summer. The longer this continues without global action on climate change, it's countries like Pakistan that will continue to suffer. मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली सजाद खान ने लंदन में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सैलाब ज़दगान की हालत ज़ार और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। बर्मिंघम में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे राजा खावर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात और मुल्क की सियासत का अहवाल बयान किया है। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, इस टाइम हमारे साथ मुस्लिम लीग नून की सियासी शख्सियत किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, सजाद खान मौजूद हैं, साबिक तहसील नाज़िम भी रह चुके हैं, इस टाइम बरतानिया के दौरे पर हैं। उनसे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इनकी जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के हवाले से जानते हैं। सजाद साहब बताइएगा कि आप किस हद तक अपनी हुकूमत की मौजूदा कारकर्दगी से मुतमिन हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि कारकर्दगी तो जब हमने 2013 में हुकूमत संभाली थी, उससे लेके 2018 तक हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की और हमारे वो मनसूबे जो थे सी पैक तक वो चल रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से 2018 के बाद आपके सामने है कि मुल्क को जो सूरत हाल दरपेश हुई और जिस तरीक़ा के साथ हमारा मुल्क दिवालिया हुआ, महंगाई अरूज पर पहुँच गई और वही 35 रुपये का आटा जो आया 85 और 90 रुपये में भी नायाब हो गया। चीनी 52 रुपये वाली 100 में भी नहीं मिलती थी, मेडिसिन नहीं मिल रही थी, आपके सामने सब कुछ। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मुल्क दिवालिया होने का शिकार हुआ जब तो पिछले मई जून में तो PDM ने और तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया कि मुल्क को बचाना है, हमने सियासत नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला ये काफ़ी बड़ा गंद पड़ चुका है, लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरीके से तमाम
सियासी जमातें मिलकर, हम सियासत नहीं कर रहे, सियासत सिर्फ एक ही जमात जो आज सैलाब ज़दगान को छोड़कर वो रोज़ जलसा खेल रही है और रोज़ वो सियासत कर रही है, उससे ना पाकिस्तान की फिक्र है ना सैलाब ज़दगान की फिक्र है। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे इंशाल्लाह इस बार मियाँ साहब पाकिस्तान होंगे और मियाँ साहब के बगैर जो है वो इलेक्शन नामुमकिन है। मियाँ साहब का पाकिस्तान होना ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब जल्द पाकिस्तान जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सज्जाद खान साहब को सुना, इनका यही कहना है कि अगले इलेक्शन की कैंपेन मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। PDM का मकसद मुल्क में मौजूदा जो महंगाई है उसको ख़त्म करके तो आवाम को रिलीफ देना है। जी, वज़ीर आला पंजाब ने सैयद तारिक महमूदुल हसन शाह को पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का वाइस चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सैयद तारिक महमूदुल हसन शाह का कहना था ओवरसीज़ के प्लाटों, जायदाद पर कब्ज़े और दीगर मसाइल दिनों में हल किए जाएंगे। वो ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए दिन रात एक कर देंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर ओवरसीज़ पाकिस्तान सैयद तारिक महमूदुल हसन शाह एक बार फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए तैयार हैं। हुकूमत पंजाब ने सैयद तारिक महमूदुल हसन शाह को पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन पंजाब का वाइस चेयरमैन बना दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सैयद तारिक शाह ने अपने साबिक़ा दौर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द अज जल्द हल करवाने में अहम पेशरफ्त की थी। वो शुरू में पंजाब के ओवरसीज़ कमीशन के वाइस चेयरपर्सन बने, लेकिन सिर्फ चंद माह की कारकर्दगी ने उन्हें साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान का भरपूर एतमाद हासिल रहा। वो बाद में इमरान खान के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुशीर बन गए। मखदूम तारिक महमूदुल हसन का कहना है ओवरसीज़ के प्लाटों वगैरह पर कब्ज़ों वगैरह जैसे मसाइल अब दिनों में हल किए जाएंगे। आपकी मुलाकात कराते हैं एक अनोखे घुड़सवार से जो घुड़सवारी करते हुए 5 बार पाकिस्तान से इंग्लैंड का सफ़र कर चुके हैं। जी हाँ, उनका नाम जावेद मलिक है और वो घुड़सवारी के ज़रिए 7 ममालिक का सफ़र कर चुके हैं। पहला सफ़र 1983 में 15 रोज़ में मुकम्मल किया। उन्हें घुड़सवारी की तरगीब अता मोहम्मद खान ऑफ कोर्ट फ़तेह खान से मिली। उनके अनोखे सफ़र के हवाले से नुमाइंदा 92 न्यूज़ वक़ार बाबा मुग़ल ने खुसूसी बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जो ना इससे पहले किसी ने सर अंजाम दिया था और ना अभी तक इनके रिकॉर्ड को कोई ब्रेक कर सका। मेरी मुराद जनाब मलिक जावेद साहब। मलिक जावेद साहब जो हैं ये घोड़ों के ज़रिए पाकिस्तान का सफ़र इन्होंने किया। बाकी जो रुदाद है वो किस तरह यहाँ से पाकिस्तान तक इन्होंने सफ़र किया वो उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद मलिक है जी। और पहली दफ़ा जब मेरी मुलाकात नवाब अता मोहम्मद खान ऑफ कोर्ट फ़तेह खान, ये नवाब अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग के सक्के भांजे भी थे और उनके दामाद भी थे। हमारी पहली मुलाकात जो है 1983 में अर्ल्स कोर्ट में एक शो हुआ था, इंटरनेशनल शो, जिसमें पाकिस्तान की टीम और ब्रिटिश टीम का मुकाबला था। और क्योंकि मलिक साहब का तल्लक मेरे वालिद साहब के साथ बहुत दरीना तल्लक था और मेरी ड्यूटी थी कि जब नवाब साहब आएँ तो उनकी हर तरह की खिदमत खातर करनी है। तो जो हमारा पाकिस्तानी रिवाज भी है उसके मुताबिक आई बेसिकली डन एवरीथिंग माई सेल्फ पॉसिबल टू सर्व नवाब साहब द बेस्ट वे आई कैन। उन दिनों में नवाब साहब ने यहाँ से घोड़े लिए और मुझे इस चीज़ का बहुत फ़ख्र है कि नवाब साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम क्यों ना ये घोड़े जो हैं बाय रोड ले चलें पाकिस्तान। तो हमने ये सफ़र जो है 1983 में किया था। यहाँ से 2 घोड़े, हम 4 बंदे थे एंड वी क्रॉस 7 कंट्रीज़, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फॉर्मर यूगोस्लाविया, बुल्गारिया, तुर्की, ईरान एंड फिर हम पाकिस्तान में दाखिल हुए। ये सारा सफ़र जो है, कहानी तो इतनी लंबी है कि मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमने 15 दिन में सफ़र किया। उसके बाद मैंने 5 सफ़र और किए। 5 दफ़ा मैं यहाँ से पाकिस्तान घोड़े लेके गया, बल्कि एक दफ़ा मैं अकेले लेके चला गया। 5 घोड़े थे मेरे पास। नवाब साहब के तल्लुकात थे इंटरनेशनली, हर मुल्क में उनका कोई ना कोई बड़ा ज़मींदार जानने वाला, एम्बेसडर वगैरह, जिनके डेरों के हम जा पे रुकते थे और वहाँ हमारे घोड़ों की वो लुक आफ्टर करते थे। हमारा स्टे का जो है ना, उनकी वो बहुत खातर तवाज़ा उन्होंने हमारी की। जी बिल्कुल, मलिक जावेद साहब का कहना था कि नवाब साहब के साथ इन्होंने जो 38 बरस गुजारे उसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा।